Good morning, everyone. Good morning, Saga. Good morning, Sagar Dada. Good morning, Pritesh Dada. Good morning, Prathamesh. Good morning, Karan. Good morning, Saga. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, madam. So we have come at the Good morning, weekend madam. session. Good morning. Good morning. Yes, still 18. The attendance is not much effective. Like, I'm not finding it much effective. What is the reason? Just 18 of them? आपको सुबह के सेशंस अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक लास्ट वीक देवर 40 10 लोग कम हुए इस वीक में एनी स्पेसिफिक रीजन yes friends because I remember when we started with the sessions last month the strength was 44 47. लेकिन अभी sorry 47. yeah 47 was the good number but it has fallen to 33 and somewhere around 33 ठीक है परसों का सेशन का टाइमिंग नहीं दिया समय पे we can understand that but even yesterday 33 is not a big number any specific reason friends क्या है problem yes I need to know the concern नहीं तो हम stop करेंगे क्या sessions shall we stop my sessions I need to know the reason right आप लोगों को मेरा समझ में आ रहा है क्या Yes, ma'am. ओनली फ्यू ओनली 1 or 2 yes अगर होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता अभी 24 23 लोग हैं 23 लोगों में से खाली 1 या 2 अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है बाकी के लोग बात नहीं करने वाले क्या जब बोला गया तो बात करनी चाहिए क्लास में हम लोग आपको कंट्रोल करते हैं कि बात मत करो यहाँ पे बोलना पड़ रहा है कि कुछ तो बोलो यस I would like to know your reflection. This is a weekend session. I would utilize this 5-10 minutes for that so that next week becomes much better. Do you want to stop the sessions, friends? बंद करें क्या? No, ma'am. नहीं, ma'am. No, ma'am. तो आपके यहाँ से मुझे कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इट विल बिकम वेरी बोरिंग फॉर मी टू फिर क्या मैं अपना रिकॉर्डिंग करके आपको रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ वाई टू इन्वेस्ट टाइम इन 7:30 सब मैं भी उठती हूँ मुझे भी काम है मुझे भी सुबह का बहुत सारा काम रहता है एंड इन दिस पैंडेमिक वी डोंट हैव सपोर्ट सर्विस मेट्स नहीं है फिर भी हम एडजस्ट करते हैं सब हमारी भी कठिनाइयां हैं पैंडेमिक में जैसे आप लोगों की होती है
because the other day somebody said मैं देर से उठा, I keep on calling randomly someone. मैम बहुत बारिश थी, घर देर से आया, तो सुबह तो नींद नहीं खुली. ये आंसर है क्या आप लोगों का? We also like female especially, I don't do gender bifurcation, लेकिन फिर भी पूरा घर का काम खत्म होने तक 12 बज जाते हैं. उसके बाद सुबह 4 बजे उठो, 4 या 5 मैक्स उठना ही पड़ता है, otherwise the things won't get completed within time. मेरे भी husband he falls into the 15 to 25 जो percentage compulsory है, mandatory है, जो corporate में लगता है. He has to move out. उनका टिफिन करना, उनका सब करके देना. मेरी बच्ची है 9th स्टैंडर्ड में, उसका स्कूल शुरू होता है 9 बजे. शी हैज टू गेट रेडी. 9 बजे उसका ऑनलाइन सेशन शुरू होता है. तो what I mean to say that even we are struggling, the faculties, all the teachers, not only me, all the teachers, may it be male or female teachers, everyone is having their own responsibilities. ऊपर से ये जो ऑनलाइन का मटेरियल बनाना पड़ता है, क्लास में बहुत इजी होता है. एटलीस्ट फॉर माई, आई लव एंजॉइंग द सेशंस इन द क्लासरूम. मुझे इंटरेक्शन बहुत पसंद है. मुझे क्लास में पूरा लाइव रहता है सेशन. लेकिन ये ऑनलाइन सेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज वी डोंट नो, आई कैन नॉट सी ऑल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू हैव फॉलोड और नॉट अंटिल एंड अनलेस यू स्पीक अप. One positive thing is that in the last week, many people have opened up on the WhatsApp. They are giving me personal messages. So at least I come to know, okay, इनको ये question है, इनको ये concern है, and then we, answer that question there itself. If it is a common concern, it is discussed in the class. So that is a positive sign. Definitely, I'm thankful for that. लेकिन class का strength मुझे अभी तक ठीक नहीं लग रहा है. ये 33 का strength, 32 का strength is something which is really not motivating, inspiring, encouraging me. तो क्या problem है, आप बोल सकते हैं कुछ? क्या concern हो सकता है? What is the concern? 10 से number क्यों drop हो गया है? कुछ बदल आपको चाहिए, कुछ और change चाहिए क्या? Okay, I'll ask you, is the pace right? अगर आप बात नहीं करना चाहते तो thumbs up आपका रिएक्शन होता है ना. ये जूम सेशन में बिलो टास्क में रिएक्शन होता है, एक बटन होता है रिएक्शन, रिकॉर्ड के बाजू में, प्रोबेबली शेयर स्क्रीन के बाजू में रिएक्शन आप दे सकते हो, थम्स अप या ऐसे. नहीं मैम, हाँ मैम, ऐसे कर सकते हैं ना. बात करो आप, या स्पीकर ऑन करके बात करो, या फिर ऐसे बोलो. तो हाउ इज द पेस of my teaching? How is the pace? Yes, Perfect. 1 or 2 से मैं नहीं जा सकती. I want more answers. ऐसे बात नहीं करना है, ऐसे करना है या ऐसे करना है. Good ma'am. उसमें कुछ change चाहिए. Every weekend I'll ask this question. Okay. No ma'am. Are you understanding the content in it? ठीक है, pace का Yes ma'am. कंटेंट वाइज कुछ आपको समझ में आ रहा है? इज इट मेकिंग सेंस? आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, क्योंकि मेरे जो मेंटी है उनके साथ मेरा अल्टरनेट डेज बात होती रहती है, लेकिन आई नीड टू रीच आउट टू ऑल द अदर ऑल्सो. y'all are also my students. I need to take care that y'all also understand. कुछ लोगों का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का कंटेंट का प्रॉब्लम है. There may be few, this subject is vast actually. I'm trying to chop it down to a very small aspects I'm touching, so that आपको रूटीन एग्जाम्पल से मैंने शुरू किया. केमको का केस स्टडी छोटा था साइज में, इसलिए झट से खत्म हो गया, और आपको एटलीस्ट पता चला कि सिचुएशनल एनालिसिस कैसे करें. एटलीस्ट आपको पता चला कि ये SWOT एनालिसिस क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. उसके लिए वो छोटी सी केस स्टडी, मैंने 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स की केस स्टडी थी, इसलिए उससे शुरू किया. सेकेंड केस स्टडी हमने पिज्जा हट की ली, बिकॉज एवरीवन, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु डजंट नो व्हाट इज अ पिज्जा नाउ, या पिज्जा का आउटलेट देखा नहीं हो एटलीस्ट बाहर से, या पढ़ा नहीं हो उसके बारे में.
तो मैंने ये सिंपल केस स्टडी लिया है, ऑल्दो इट वाज 2-3 पेजेस, उसमें एग्जिबिट्स है, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आए व्हाट्सएप पे कि ये एग्जिबिट्स का हम इस्तेमाल कैसे करें, इट्स अ गुड साइन ऑफ लर्निंग, राइट। तो मैंने डेफिनेटली सबके लिए ये जवाब भी है कि एग्जिबिट्स का उपयोग हम लोग रेफरेंस के तौर पे करते हैं। जैसे केस स्टडी में कुछ बातें दिए नहीं रहती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेक अ एजम्पशन, लेकिन ये एजम्पशन रेलिवेंट बनाने के लिए हमको एग्जिबिट की मदद होती है। जैसे पिज्जा केस की केस स्टडी में देयर आर 4 एग्जिबिट्स, और मैंने आपको पूछा था कि क्या दिक्कतें आई इंडियन मार्केट में लॉन्च करते वक्त। लॉन्चिंग एंट्री स्ट्रैटेजी होती है या कंपटीशन रहता है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो यहाँ केस स्टडी में उन्होंने दिया है कि उन्होंने क्या किया, इंडियनाइज्ड मेन्यू बनाया। तो कैसे हमको पता चला, ये तो केस स्टडी में दिया नहीं है, लेकिन हमने एग्जिबिट्स देखे। थोड़े आप गो थ्रू करो एग्जिबिट्स, इनिशियली आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन once you read the case study 2 times at least, you relate कि एग्जिबिट में ऐसा क्या दिया है जिसको हम सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, उन्होंने मेन्यूज दिए हैं, इंडियन तंदूरी मेन्यू है, या फिर पैन क्रस्ट पिज्जा है, या तवा पिज्जा है, या ऐसे कुछ तो दिया है, या विच आर द अदर कॉम्पिटिटर्स विच आर गिवन, उनका कुछ स्टेटस दिया होता है, या फिर देयर वुड बी अनदर थिंग लाइक they might have given the year कि उनको वो प्रोग्रेसिव अप्रोच करने के लिए कितने साल लगे। तो ऐसे कुछ क्लूज दिए होते हैं एग्जिबिट्स में। कुछ एग्जिबिट्स में फाइनेंशियल रिपोर्ट रहता है कभी कभी, तो you need to understand little bit of financial report, how to make use of it, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेल्स फोरकास्टिंग कितना दिया रहता है। तो केस स्टडीज में आगे जाके आपको ऐसे एग्जिबिट्स मिलेंगे। या फिर इन सम केस स्टडी, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एचआर केस स्टडी, शो कॉज नोटिस मे बी वन एग्जिबिट में रहेगा, ओके, या फिर मे बी सम इंसिडेंट्स रहेगा, या लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय नेग्लिजिबल, ऐसे कुछ तो इंसिडेंट्स रहेगा। See, based upon the case study, that exhibit has some value. And sometimes 5 exhibit दिए होते हैं, उसमें से खाली 2 ही आप उपयोग में लेके आ सकते हैं, ऐसे भी होता है। आपको वो आए, ये you need to be very vigilant in understanding what is required and what is not. तो exhibit का ये मतलब होता है। तो that was one of the question which somebody has asked me on the WhatsApp group. So accordingly I answered. So not WhatsApp group, personal WhatsApp window. तो ऐसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके, whichever is common, I'll again repeat that question in the class also, okay. If it is with respect to somebody, like somebody said कि मुझे कुछ words समझ में नहीं आते, जैसे किसी ने बोला कि मुझे diversification समझ में नहीं आया। Now this is not only concept which is business related, but it is also related to your vocabulary, okay. Now we are talking about from business perspective, corporate perspective, स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव। और स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे हम रेगुलर जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज समथिंग विच इज देयर एवरीवेयर। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना झंडा आगे करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है उनका, हम बात करते हैं, लेकिन बात करते करते समझ में नहीं आती कि हम स्ट्रेटेजी वर्ड यूज किए हैं वहां पे। तो हमारा क्या अगला मूव रहेगा, दैट इज स्ट्रेटेजी। उसके लिए आपका माइंडसेट वैसे होना जरूरी है। जैसे आप चेस खेलते हो या जानते हो कि चेस में कैसे होता है, हर एक जो रहता है ना, हाथी रहता है, घोड़ा रहता है, किंग एंड क्वीन रहती है, वजीर रहता है, तो इनका सबका, या सैनिक रहते हैं आगे, तो इनका सबका एक स्ट्रेटेजिक मूव रहता है, उनका वो प्रोटोकॉल रहता है, उसमें आप मूव करते हो आगे। फिर आगे वाला प्लेयर जो मूव करता है उसके बेसिस पे एनालाइज करके, आगे का विजुअलाइज करके, फोरकास्टिंग करके आप अपना मूव बनाते हो। क्या है ये? चेस का पूरा गेम स्ट्रेटजी में है। इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक मूव, सो दैट यू अंडरस्टैंड द अपोनेंट्स का प्रोबेबल मूव एंड मेक योर स्ट्रेटजी, कि आपको वजीर को आगे लेना है, या ऊंट को आगे लेना है, या हाथी काफी रहेगा वहां पे, या हमारा सैनिक ही आगे एक स्क्वायर आगे जा सकता है। ये भी स्ट्रेटेजिक गेम है, माइंडसेट का गेम है ये। एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाटएवर मूव वी मेक, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। वो पर्सपेक्टिव क्या है, ये हम लोग ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। जैसे मार्केट पढ़ो, या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्राइसिंग पढ़ो,
प्राइसिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग पढ़ो, मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ो, ओके, कैसे हम प्रोडक्ट प्राइसिंग कर सकते हैं ये पढ़ो आप, ओके, डोमेन नॉलेज यहाँ पे यूज होता है आपका, नॉट नेसेसरली टेक्निकल नॉलेज, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में क्या तब्दीलियां हो रही है जिंदगी में अपने आजू बाजू में, ये आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी लगता है यहाँ पे, या थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा देखने में कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे भी नहीं पसंद आता इकोनॉमिक टाइम्स, वो हम लोग लेकिन फिर भी पढ़ते हैं बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, यू हैव टू बी aware about what all things are happening in the business corporate world, okay, आप हेडलाइंस देखिए, ये सारा इम्पोर्टेंट है कि रिलायंस में अभी उनका मार्केट शेयर कितना है, कैसे चल रहा है, वो अभी किस वजह से वो फॉल हो गया है, अभी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी इनके बीच में जो भी हो रहा था, ये इस बैंक का उनका क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये जो जनरल नॉलेज की बातें हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली दिस, many subjects you will be getting benefit, so थोड़ा बहुत आप पढ़ो कि आपके आजू बाजू में लाइफ में क्या हो रहा है बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट दैट बना बनाया केस स्टडी है फिर आपको सबका नॉलेज होना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हर एक सेक्टर का थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना जरूरी बनता है, क्योंकि केस स्टडी किस तरह से आती है, अभी मैंने इजी है इसलिए फूड सेक्टर, सर्विस सेक्टर से शुरू किया, इट कुड बी एनी अदर, मैंने एग्जांपल दिया टेक महिंद्रा का, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट, उसके डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट बताते वक्त मैंने टेक महिंद्रा का एग्जांपल दिया था, कैसे पहले उनका 2 टाइप का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, रादर नेम चेंजिंग वाज आल्सो अ स्ट्रेटजी, जब उनका बीटी का शेयर कम हो गया, ब्रिटिश टेलीकॉम का, उनका नाम एमबीटी से टेक महिंद्रा हो गया, लॉन्ग बैक इन आई थिंक इन 2000, राइट, उसके बाद 2010 में भी चेंज आ गया, उनका डाइवर्सिफिकेशन हो गया व्हेन दे एक्वायर्ड सत्यम, and Satyam is a different product business industry. Tech Mahindra is a telecommunication giant, whereas Satyam was purely into software development of various softwares, application development. तो उनका 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं अभी, एक टेक महिंद्रा का इन हाउस एंड जो उन्होंने एक्वायर किया है सत्यम, उनका भी उसमें जोड़ आ गया, तो उनका प्रोडक्ट लाइन बढ़ गया ना. So there were 2 different things which happened in Tech Mahindra in last decade. Okay, नाम चेंज हो गया, diversification, that is acquisition of, getting Satyam merged in Tech Mahindra. तो merger and acquisition का एक example बन गया ये. Maybe we'll discuss that in detail in the second or या third chapter में. Okay. This week we have completed almost 90% of first chapter as far as the university syllabus is concerned. Now next week we are going to complete the remaining part. इसलिए मैंने ये सेशन ऐसे लिया है कि आपसे बात करूं कि कैसे चल रहा है. Before it is hampering further, I need to talk to you all. That is the reason. आप कुछ बोलना चाहते हो? Anyone? Anyone in the class would like to speak? Yes, friends. Any reflection on this? कोई नहीं बात करना चाहता है. Shall I move ahead then without understanding, without कुछ भी बात कर सकते हैं अभी सेशन के बारे में. Yes, friends. No marking for this कि ये ऐसा बोला, ऐसे कुछ नहीं है. Please don't have that notion in your mind. आप मराठी में बात कर सकते हैं, अभी हिंदी में बात कर सकते हैं ये सेशन के लिए अभी आज के. Please speak up. Yes, friends, I need your reflections. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am से नहीं काम चलेगा. I want your reflections. I need to know what is your understanding, what is your mindset, how we want to go ahead. अभी एक चैप्टर पहला खत्म होने को है. It's a big chapter, understanding strategy in strategic management. तो नेक्स्ट वीक में हम लोग ये पूरा चैप्टर
we are going to finish. So I need to understand how are we going and how we should go ahead. I will be always asking on some of the weekends whenever we come to in the middle of the chapter or at the end of the chapter, so that rectification can be made in time. Yes, friends. Not a single reflection. Hello. Yes, ma'am. हेलो मैम। Yes, yes. जो मैम आप एग्जाम्पल देते हो वो अच्छे थे, मतलब जो हमें समझ में आते हैं। और इवन आप छत्रपति शिवाजी महाराज पे देते हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो वो अच्छे हैं मैम, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स आप देते हो जो उसको समझ में आता है हमें अच्छे से। इवन मी, बाकी का नहीं पता मुझे, बाकी का मुझे समझ में आता है। What about other? I think Priyanka wanted to say something. यस मैम, मुझे भी बहुत समझ में आया जो आपने डोमिनोज और पिज्जा हट का केस स्टडीज कंपैरिजन में हमें समझाया, वो बहुत अच्छी तरह मुझे समझ में आया। Okay. See, case study methodology is probably new to you or probably few of them are aware. लेकिन उसको अप्रोच ठीक तरह से आपने किए, आप लोगों ने अगर करते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपको नॉलेज गेन होता है। ओके, तो ठीक है, और कोई कुछ बात करना चाहता है? Yes, Hello. Yes, madam. Yeah, so basically, strategic management is very important aspect in our corporate culture and as well as personal life. Yes. You very well brought up the two examples of the Reliance Industry and AS Bank. If you see the share market, Reliance earlier it was due to pandemic situation it was 900, and now price is the 2,100. At the time of the investment, if you think rightly in the March or April, if you buy the shares at price of 900, it would be double profit at this time. So you should think properly, aptly, and need to take the decision, even if it is in company level or any share marketing level or anything, any level, you should think and take the decision on the right time. That's why strategic management is the very important part in both sides, as personal life and as well as the corporate life. Yes. Very true, Thank you. very true. Yes, Yeah. thank you so much. Yeah, so and जो मैं केस स्टडी सॉल्व करने का अप्रोच बता रही हूँ, ये एक सैम्पल अप्रोच है. Probably many of you will find this approach very beneficial for solving other subject case studies also. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग स्ट्रेटेजी सोल्यूशन या अप्रोच यू मे फॉलो. ओके, सो इट डिपेंड्स, सबको जो भी इंडिविजुअल लोगों को कौन सा सही लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा फीजिबल लग रहा है, आप फॉलो कर सकते हो. ऐसे नहीं कि मेरा ही फॉलो करो. अगर मेरा फॉलो करना चाहते हो, समझ में आ रहा है, तो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फॉर ऑल द केस स्टडीज. केस स्टडीज तो केस स्टडी रहता है, कोई भी सब्जेक्ट का हो. Okay. Now here I have not followed flow charts and all those things. That also you can add, because when I used to solve case studies of MIS, for example, management information systems, data flow diagram वर without उसके बिना तो चलता ही नहीं है. इवन हमारे कुछ केस स्टडीज आगे भी आएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में मैंने बताया है, तो मे बी वो आप यूज कर सकते हो बाद में फैक्ट्स देने के लिए. So it depends how wisely you use the time and facts given, how you represent it in order to solve it. Okay. Now, one more thing in today's session which I'm going to inform you all is regarding the assignment. बहुत thoughtfully मैंने ये assignment बनाई है, not to burden you, क्योंकि ये beginning है. You have your exam का कुछ तो information also which is floating on. तो मैंने 2 assignments बनाए हैं. एक तो मैंने दिया है आपको और दूसरा मैं अभी बताने वाली हूँ. It is going to help you rather than burden you. How? Let's see that in today's session in few minutes. I'll start screen sharing. Prasad sir, can you please give me the screen sharing rights? Yeah, Yes, ma'am. it's there. Thank you.
सॉरी, ये नहीं, सो ये मैंने पहले ही आपको एक होम असाइनमेंट दिया था जिसका सबमिशन 10th of August है. ओके, तो अच्छा टाइम है. और उसमें मैंने 3 बातें आपको बताई थी. एक तो आपको केस एनालिसिस का ड्राफ्ट बनाना है. कैसे बनाना है? गिवन टेम्पलेट. ओके, तो ये टेम्पलेट मैंने आपको बताया है. ओके, नाउ ये टेम्पलेट ये है कि इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो. ये भी आपको मैंने दिया है. ठीक है, तो ये हो गया एक बात कि आपको केस स्टडी पढ़नी है, उसका ये अप्रोच फॉलो करना है, सोल्यूशन अल्टरनेटिव आपको निकालने हैं. तो ये केमको केस स्टडी हमने जैसे सॉल्व किया, ये आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी है. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, ब्रेनस्टॉर्म किया है. अभी आपको वो सारा लिखना है. दूसरा, टास्क फॉर होम असाइनमेंट मैंने दिया है जिसमें ये 2 क्वेश्चंस है. How Pizza Hut made amendments and overcome shortcoming as it faced initial setback and lost market share. इसका आपको उत्तर देना है. And second thing, which is the last thing here, observe, identify different strategies that are adopted by pizza chains in India. Now friends, ये आपको कुछ लोगों को टफ लग रहा है. मुझे कुछ SMS आए हैं कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें. ओके, तो एक तो है कि ड्राफ्ट तो मैंने केस एनालिसिस का आपको बताया है. अभी इन ऑर्डर टू मेक योर टास्क फॉर होम असाइनमेंट इजी, आई गिव यू वन क्लू ऑल्सो. लेट्स सी व्हाट इज दैट क्लू. वन क्लू इज केस एनालिसिस का ये ड्राफ्ट और हमारा पूरा अर्लियर सेशंस. इफ यू रिकॉल, इफ पीपल हैव पिनपॉइंटेड फ्यू थिंग्स, यू विल गेट द क्लू. सेकेंड क्लू आपको मिलेगा अपनी असाइनमेंट पे. ओके, सो ये आज के सेशन के लिए था. इंट्रोड्यूसिंग यू टू द अप्रोच ऑफ असाइनमेंट असिस्टेंस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड असाइनमेंट एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. Ma'am, Yes. ma'am, I think your screen is gone stuck. It's just on the 5th slide. Oh, is it? I'll just stop it and share again. Thanks for informing that. Is it visible? Yes, Is it ma'am. visible? Okay. Is it moving ahead? Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Yeah, this is one important slide for today's session. Assignment and supportive reading, blended approach in our pedagogy. मतलब मेरे टीचिंग में ये अभी चैप्टर 1 के लिए ये स्ट्रेटेजी है. ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेरा टीचिंग स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो. ठीक. So we have already gone through 2 case studies and आपको ये case study के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उसके लिए ये मैं सपोर्टिव रीडिंग दे रही हूँ. इट्स ऑप्शनल. नाउ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पिज्जा हट एंड डोमिनोज, इसका मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है. दिस विल हेल्प यू रिव्यू आवर पिज्जा केस स्टडी कंडक्टेड इन द क्लास अर्लियर एंड असिस्ट यू इन प्रिपेयरिंग द केस सोल्यूशन ड्राफ्ट क्वालिटेटिवली. क्योंकि बहुत वर्डिंग्स, कुछ लोगों की वोकैबुलरी कम होते हैं, कुछ लोगों को बिजनेस नॉलेज का थोड़ा ज्ञान इतना ज्यादा नहीं रहता. अभी शुरू है ये. You are entering into that world. Of course, there are many of you all also who are already into the business, so they might be finding it little easy. लेकिन फिर भी ड्राफ्टिंग का वक्त आता है तो कुछ लोगों का थोड़ा दिक्कत आती है, कुछ लोगों को. तो ये आपको हेल्प करेगा. It will as well give you an idea of how a research is presented and can be used to improve your SIP understanding. And this is that, you know, आप बोल सकते cherry on the top. ये आप लोगों को कुछ और ज्यादा दे रहा है. क्या? कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पिज्जा हट एंड डोमिनोज का मैं एक आर्टिकल आपको देने वाली हूँ. तो उसमें जो डेटा दिया है वो आपको हेल्पफुल रहेगा. जैसे लेट मी शो दैट. आपको दिख रहा है ये कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पिज्जा हट एंड डोमिनोज बिजनेस? No, ma'am. Oh, just a minute. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes. तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके पास शेयर करने वाली हूँ. इट्स अ ऑप्शनल रीडिंग. आपको कंपल्सरी रीड करना जरूरी नहीं है, लेकिन आई वुड रेकमेंड दैट वीकेंड में आप ये पढ़ लो. इसके 2 फायदे हैं. एक फायदा है कि आपको केस एनालिसिस ड्राफ्ट करने में इसका बहुत उपयोग रहेगा. And second is, this is something which is done by this Ruchira Kar and Neha Dokania.
So it's something which is already in this particular pandemic. I found it very easy to share it with you all. ये आपको also support करेगा. आपका जो SIP चल रहा है उसमें आपको help करेगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं किसी केस का. आपका प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके ड्राफ्टिंग के लिए भी आपको एक व्यू, अच्छा व्यू मिलेगा. आपको सपोर्टिव क्वालिटेटिवली आप लिख सकते हो कि लैंग्वेज कैसी रहती है, आपका टेम्पलेट में स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ्लो ऑफ लैंग्वेज कैसा होना है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होना है. हेलो मैम, थोड़ी सी स्क्रीन आप बड़ी कर सकते हो, साइज स्क्रीन की? ये मैं आपको भेजने वाली हूँ फ्रेंड्स, आपको ये Okay, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ. Yes, is it visible now? हाँ, yes. Yeah, ये मैं आपको भेजने वाली हूँ. I will send it probably through WhatsApp, or I'll just see what way you all are getting your assignments or supportive material. तो ये आपको help करेगा. जैसे ये introduction है, ये literature review है. आपके प्रोजेक्ट में ये बहुत जरूरी है, तो आपको ये एक अंदाजा आ जाएगा. This is just a sample. I am not saying that this is a standard. नहीं तो फिर आपके मेंटर से आप you need to follow what your mentors actually tell you. So see that you as well take their concern also. So this is literature review. अभी this case is related to service quality, तो थोड़ा बहुत service quality के हिसाब से दिया है. Then moving ahead, 9 minutes we have, so I'm running a little bit. This document you all are going to get, so just we'll go through it. पिज्जा हट के बारे में थोड़ा दिया है, फिर ऑफरिंग वैल्यू फूड उसके बारे में थोड़ा दिया है, मूविंग बियॉन्ड मेट्रोज, अग्रेसिव मार्केटिंग एंड टाई अप्स. ये सारा हमने अपने हिसाब से डिस्कस किया है. जो केस स्टडी हमने पिज्जा हट की सॉल्व की है उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये. तो ये आपको डॉक्यूमेंट अलग व्यू भी दे सकता है कुछ. डिप्लॉइंग सप्लाई चेन, लिवरेजिंग इंडिया एडवांटेज. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही कुछ. हेलो मैम, अभी आपने कुछ कहा क्या मैम? कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा? कुछ भी सुना नहीं. हेलो Hello. Yeah. Hello, friends. Actually, my laptop is hanged now. It's not getting restarted also. So I'll conduct this 5 minutes more of our session through my cell phone. Am I audible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, madam. Yes. Yeah. I'm so sorry that my laptop is hanged and I think there is some system problem. So I'm going to send you all 2 documents. One document I was right now showing you all is a research paper which is written by 2 people, and they have been writing on that, and we have comparative analysis between Domino's and Pizza Hut. So you will get a draft template which will help you answer हमारा जो पिज्जा केस स्टडी है वो ड्राफ्ट करने के लिए आपको आसानी रहेगी. This is one aspect. Second aspect is that आपका जो SIP चल रहा है उसके लिए आपको ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा कि आपको जैसे वर्ड्स सूझते नहीं है ड्राफ्टिंग में, तो ये आपको एक फ्लो का अंदाजा आ जाएगा किस तरह से स्ट्रक्चर होता है रिसर्च डॉक्यूमेंट का, इसका आपको अंदाजा आ जाएगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. सो आई रेकमेंड यू ऑल टू रीड इट. दिस इज एन ऑप्शनल रीडिंग ऑल्दो. The second aspect is sorry, the second aspect, that is second document I'm going to share with you all, and that is again one of the second assignment. So I'm blending the assignment into your understanding of your sessions also. तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है. It's going to again help you. Second article is based on different strategies, okay, that are applied by various food chains in India. आपको रिकॉल करूं कि हमारा पिज्जा के स्टडी का सेकंड क्वेश्चन भी यही बोलता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय फूड चेन्स इन इंडियन मार्केट. यस और नो? हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam.
या Yes, तो ma'am. वो आंसर करने के लिए आपको आर्टिकल, जो मैं दूसरा आर्टिकल शेयर करने वाली हूँ, दैट विल हेल्प यू, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी, बिकॉज दिस इज फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स, आई एम ब्लेंडिंग देम सो दैट आपका एफर्ट कम से कम तरीके से मैनेज हो, मतलब आपका टाइम मैनेज हो, एफर्ट्स मैनेज हो। तो एक एफर्ट में आप 2 बातें कर रहे हो यहाँ पे, 2 केस, मतलब केस स्टडी भी सॉल्व करोगे और असाइनमेंट भी सबमिट हो जाएगी उसी स्टडी में। तो ये मैंने कनेक्ट किया है सो दैट आपका एफर्ट ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, आपका टाइम ऑप्टिमली यूटिलाइज हो। तो ये सेकेंड आर्टिकल में जो भेजने वाली हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। Okay, whenever a food chain is being competing in the market, तो उनकी क्या क्या strategies है Indian market में, तो ये भी आपको एक समझ में आएगा। That is also a research paper, but now here the second research paper which I am going to send you all, I want you all to review it. Okay, वो कैसे करना है वो भी मैंने स्लाइड में बताया है, that also I'll share it with you. Basically आपको आपका टाइटल आर्टिकल का लिखना है, उसके नीचे आपका डिटेल लेना है। कोई भी असाइनमेंट इसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपका नाम, रोल नंबर और आपका स्पेशलाइजेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड देन यू राइट इन 3 पैराग्राफ्स द आर्टिकल रिव्यू। फर्स्ट पैराग्राफ में आप बोलोगे कि वो आर्टिकल में जिस्ट उसका क्या है, समरी, कि किस सेक्टर का वो आर्टिकल है, क्या किया है, किस एरिया का क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन था, and so forth as it is given there in 1 paragraph. Second paragraph में वो ऑथर जो है उसका नजरिया क्या है, वो आर्टिकल लिखने में कंक्लूजन आने तक उनका क्या अप्रोच है, वो आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। और थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है अपना खुद का रिफ्लेक्शन, कि आपका क्या उसके ऊपर कहना है, whether you are going with the author or whether you are contradicting, whether you have some other reservations for that article or whether you are supporting that article, and आपका खुद का रिव्यू कमेंट कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आना चाहिए। तो ये भी मैं आपको शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे या मे बी ईमेल में। I'll just take help of Prasad sir and I'll share these things with you all. So 2 articles I'll be sharing. One is just for optional reading, that is comparative study between Pizza Hut and Domino's, and second article is for the second assignment, which is also helping you in solving your first assignment. समझ में आ रहा है सबके? Yes, yes. Any question? I think we have 4 minutes. Any question? No, ma'am. Assignment number 1 is पिज्जा केस स्टडी का केस टेम्पलेट से केस ड्राफ्ट with probable solution and answer those 2 questions. This is the first assignment. And second assignment is, I have shared with you all, I will be sharing with you all article या research paper and you have to review it. और ये जल्दी देने की जरूरत नहीं है, वो 17 तारीख को, मतलब next to next Monday. You have 2 weeks in hand. तो आराम से आप कर सकते हो, लेकिन आप जितना जल्दी करोगे उतना लिंक में रहोगे, और ये संडे आप इसके लिए यूटिलाइज करो। आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से, मैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस बहुत धीरे से जा रही हूँ, तो अगले 17 तारीख तक हमारा ये चलने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड असाइनमेंट का डेट 17th of August रखा है मैंने, 17th of August, नॉट इमीडिएटली। तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर आप ये संडे यूटिलाइज करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और रिलेट कर पाओगे आपके कंसेप्ट्स। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। लास्ट मिनट, वी कैन जस्ट हैव एनी क्वेश्चंस? Hello, madam. Yes. Yes, actually, I have good article on the business strategy of Pizza Hut. If you allow me to share amongst the students, so I can share with them. Definitely, definitely. Whatever is beneficial and contributing to the subject is welcome. But I would suggest that you may please share it with me personally first. I'll Yes, have yes, a sure. yes, and it's a very good sign that even if you all are coming ahead and contributing, it's the best sign, okay, of teaching learning process.